फ्रॉम ले। आज के इस एपिसोड में हम आ गए हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड डेस्टिनेशंस लेह लद्दाख में, जहां लाइफ में एक बार जाना तो हर किसी का सपना होता है। क्यों? क्योंकि दिस प्लेस इज मैजिकल एंड इज फेमस फॉर सेरीन ब्यूटी, गॉर्जियस लैंडस्केप्स एंड कलरफुल रिवर्स। बहुत लोग ये समझते हैं कि लद्दाख सिर्फ एक बाइकर्स डेस्टिनेशन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज अ पैराडाइज फॉर एवरी टाइप ऑफ ट्रैवलर। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा व्हाट ऑल यू कैन डू इन 24 आवर्स इन लेह लद्दाख। एंड विद दैट, वेलकम टू लेह लद्दाख। वेलकम बैक फ्रेंड्स। कल हमें रात हो गई ले पहुंचते पहुंचते, और आज का दिन हम करने वाले हैं ले सिटी का टूर। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और बाहर का तापमान है 9 डिग्रीज। जब हम सब रेडी हो गए तो हमें नाश्ते में आलू पराठे के साथ केचप, अचार, चटनी, जैम और बटर सर्व किया गया। कारगिल इतना अच्छा है, हिमालय का वो इतना। इसके बाद हम किंग सिंगे नामग्याल सर्कल के पास बने टैक्सी स्टैंड पहुंच गए। वहां से फुल डे साइट सीइंग के लिए हमने एक टैक्सी ले ली। देयर आर मेनी प्लेसेस दैट यू कैन विजिट इन ले, लाइक पैलेसेस, मोनास्ट्रीज, रिवर संगम, मैग्नेटिक हिल, war memorials, etc. But ultimately it depends upon 3 factors. First, what you are interested in. Second, how many days you have in hand. And lastly, how much will you be spending. चलिए आज के दिन की शुरुआत हॉल ऑफ फेम से करते हैं। ये उस सर्कल से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। लेह का एयरपोर्ट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। हॉल ऑफ फेम is a must visit destination if you are traveling to Leh Ladakh. It is a museum and a war memorial constructed and maintained by the Indian Army to honor the brave soldiers who fought and sacrificed their lives in the Indo-Pak wars, including the Kargil war. इंडिया का सबसे बड़ा दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। आप में से कोई बताएगा पहला और तीसरा कौन सा है? एरिया वाइज ले दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो आप में से कोई बताएगा पहला और तीसरा कौन सा है? यूपी डिस्ट्रिक्ट। गुजरात का कोई नहीं है। On display there are photos and biographies of martyrs who laid down their lives in different wars and battles, and then collections of weapons and equipment used in military operations. It is not just a museum, it is a reminder of the real life battles fought in the extreme terrains along the line of control in places like Kargil, Siachen and Dras. It is a place that inspires pride and respect for our army. Whether you are a tourist or a patriot, this museum will leave you with strong feelings. Just before the exit, there is a souvenir shop where you can purchase Indian Army t-shirts, caps, badges, keychains, books and local Ladakhi handicrafts. The next attraction on our list is the Spituk Monastery, which is just 2.4 kilometers from the Hall of Fame. Spituk Monastery, also known as the Spituk Gumpa, is a fascinating place located about 8 kilometers from the King Singye Namgyal Chowk, from the point from where we started today morning. It is a Buddhist monastery founded in the 11th century and is perched on a hilltop, offering breathtaking panoramic views of the Leh town, the Indus Valley and the surrounding snow-covered mountains. ये बौद्ध मठ एक पहाड़ी पर स्थित है जहां से आप लेह टाउन, सिंधु घाटी और आसपास की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के मनोरम दृश्य का बखूबी आनंद ले सकते हो। यहाँ का मुख्य आकर्षण है काली की विशाल प्रतिमा, जिसका अनावरण वार्षिक गुस्तोर उत्सव के दौरान किया जाता है। The monastery houses a giant statue of Kali unveiled during the annual Gustor festival. Spituk has an average elevation of 10,852 feet. Every year the Gustor festival is held at Spituk from the 27th to 29th day in the 11th month of the Tibetan calendar, usually in January or February. It features chum dances and some religious programs.
जय काली माता। जय काली। जय काली माता। जय काली। स्पिटुक मोनेस्ट्री से ही बगल में बने ले एयरपोर्ट का बहुत ही क्लियर व्यू मिलता है। ले एयरपोर्ट का नाम कुशोक बकुला रिनपोचे के सम्मान में रखा गया है, जो स्पिटुक मोनेस्ट्री के एक बहुत ही पूज्य और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। ले एयरपोर्ट इज द हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट इन इंडिया at an elevation of 10,682 feet. The airport is owned by the Indian Air Force, but the commercial passengers terminal is managed by the Airport Authority of India. हॉल ऑफ फेम और स्पिटुक मोनेस्ट्री के बाद हमारा तीसरा पॉइंट है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, जो स्पिटुक मोनेस्ट्री से 18 किलोमीटर दूर श्रीनगर ले हाईवे पर लोकेटेड है। और गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब से 3.5 किलोमीटर्स अहेड ऑन द सेम हाईवे वी हैव अवर फोर्थ पॉइंट, द वेरी फेमस मैग्नेटिक हिल। और मैग्नेटिक हिल से अनदर 7 किलोमीटर्स अहेड अगेन ऑन द सेम हाईवे वी हैव अवर फिफ्थ पॉइंट, द संगम, which is a confluence of two rivers, Indus River and the Janska River। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, 4 and 5 हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, so I would not like to repeat them here again in this video। तो आप लोग प्लीज मेरा पिछला वीडियो चेक कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। So let us now move to our sixth point, which is the शे पैलेस। शे पैलेस एक प्राचीन परिसर है जो लेह से 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। यह ऐतिहासिक स्थल प्राचीन काल में लद्दाख की गर्मियों की राजधानी हुआ करता था। ओरिजिनल पैलेस का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि वर्तमान स्ट्रक्चर का निर्माण 1655 में किया गया था, लेकिन आज ये भी खंडर में तब्दील हो चुका है। The monastery within the palace complex houses a giant copper gilt statue of Shakyamuni Buddha, which is the second largest Buddha statue in Ladakh। This 39-foot tall Shakyamuni Buddha statue is a major attraction, covering 3 floors of the monastery। The statue is made of copper with gilded gold। Special permission is required to visit the inner sanctum of the monastery, and no photography is allowed inside the inner sanctum। This view is from the topmost floor of the monastery, which houses many beautiful wall paintings, whereas the lowest floor houses a library containing ancient manuscripts। ये पैलेस का मेन चॉर्टन है। इसका एवरेज एलिवेशन 11,204 फीट है, जो लेह से थोड़ा ज्यादा है। Hence take necessary precautions to avoid altitude sickness। Perched on the top of the hill, the monastery commands panoramic views of the surrounding Indus Valley। अब बारी है 7th पॉइंट की, द ठीक से मोनेस्ट्री, जो शे पैलेस से 4.6 किलोमीटर आगे पड़ता है इसी रोड पे। लेह से 19 किलोमीटर दूर ये एक आश्चर्यजनक तिब्बती बौद्ध मठ है, जो सिंधु घाटी में एक पहाड़ी पर स्थित है। 15वीं शताब्दी में बना ये 12 मंजिला परिसर मिनी पोताला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये तिब्बत के पोताला पैलेस की तर्ज पर ही बनाया गया है। मठ परिसर में शामिल है मैत्रेय बुद्ध की 15 मीटर ऊंची मूर्ति, जो 2 मंजिलों तक फैली हुई है, जिसे 1970 में 14वें दलाई लामा की यात्रा की स्मृति में बनाया गया था। ठीक से मठ बौद्ध संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अवश्य देखने योग्य स्थल है। अगला स्टॉप है शांति स्तूपा, जो लेह का एक हिस्टोरिकल बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। ये ठीक से मोनेस्ट्री से 21 किलोमीटर दूर है। शांति स्तूपा यूनिवर्सल ब्रदरहुड का प्रतीक है और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन लेह का ये शांति स्तूपा विशेष रूप से अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें 14वें दलाई लामा द्वारा स्थापित भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। ये चंस्पा गाँव के पास एक पहाड़ी पर स्थित है, लेह से 5 किलोमीटर दूर। ये आपको लेह का 360 डिग्री पैनोरामिक व्यूज प्रदान करता है। बेस्ट व्यूज के लिए अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून में आए। इट वाज बिल्ट इन 1991 अंडर द गाइडेंस ऑफ जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क ग्योमियो नाकामुरा एंड लद्दाखी लामा कुशोक बकुला। शांति स्तूपा में एक कैंटीन भी है लाइट रिफ्रेशमेंट्स के लिए। ठंडी में गरम गरम जिंजर लेमन टी पीने का बड़ा मजा आता है। दिस प्लेस इज द बेस्ट फॉर फोटोग्राफी, सो गेट योर कैमरा रोलिंग। Shanti Stupa is a must-see attraction in Leh, offering a unique blend of spirituality, culture and natural beauty। शांति और प्राकृतिक सौंदर्य की तलाश में आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक लोकप्रिय स्थल है। अब यहाँ से चलते हैं द लेह पैलेस।
ले पैलेस एक हिस्टोरिकल रॉयल पैलेस है जो 17th सेंचुरी में किंग सेंगे नामग्याल द्वारा बनाया गया था। इट यूज्ड टू बी द रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ लद्दाख अंटिल मिड 19th century when Dogra forces invaded Ladakh and the royal family shifted to Stoke Palace from here. इसकी तुलना अक्सर लासा के पोताला पैलेस से की जाती है। समय के साथ ये स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त होता रहा, but it is now restored and maintained by the Archaeological Survey of India thanks to ASI. ले पैलेस इज अ साइलेंट स्टोरी टेलर ऑफ लद्दाख्स रिच हेरिटेज, जहां आज भी सदियों पुराने प्राचीन पेंटिंग्स और अवशेष मौजूद है। The Palace Museum houses a rich collection of artifacts, royal costumes, jewelry, ornaments, crowns, dating back to more than 450 years old. लोकल मटेरियल्स जैसे पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और रेत से बना ये 9 मंजिला महल लद्दाख की संस्कृति और इतिहास का एक बेहतरीन नमूना है, जिससे महल के अंदर का तापमान हमेशा कूल एंड प्लेजेंट बना रहता है। पैलेस के टॉप मोस्ट फ्लोर को विक्ट्री टावर कहा जाता है, सिंस इट ऑफर्स ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर ले टाउन एंड द हिमालयन रेंजेस। अगर आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तब भी मैं कहूंगा कि एक बार आप ले पैलेस होकर आइए, बिकॉज द ले पैलेस ऑफर्स स्टनिंग विस्टास ऑफ द ले टाउन, शांति स्तूपा एंड द स्नो कवर्ड माउंटेन्स, आइडियल फॉर सनराइज एंड सनसेट फोटोग्राफी। So after witnessing a beautiful sunset at ले पैलेस, अब चलते हैं ले मार्केट की ओर, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और अंत में डिलीशियस लद्दाखी फूड टेस्ट करेंगे। सो लेट्स गो। हिमाचल के मॉल रोड्स घूमने के बाद आज हम आए हैं ले का मॉल रोड एक्सप्लोर करने, यहाँ की वाइब्स को एंजॉय करने। जस्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम द ले पैलेस, ले मार्केट इज द बस्टलिंग हार्ट ऑफ द टाउन। यहाँ की वाइब्रेंट एनर्जी और मिक्स्ड ट्रेडिशंस आपको अपनी ओर खींचते हैं। ले मार्केट सर्व्स एज ए सोशल हब फॉर बोथ locals as well as tourists, जहाँ लोग मिलते हैं, स्टोरीज शेयर करते हैं एंड दे एंजॉय देयर बटर टी। ये मार्केट रात के 9 बजे तक खुला रहता है और यही कारण है कि मैंने इसको सबसे आखिर में रखा, बिकॉज ले मार्केट इज द बेस्ट प्लेस टू एंड योर डे विद ग्रेट शॉपिंग एंड सम टेस्टी फूड। लेकिन आप आओगे तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आना। यहाँ के नैरो स्ट्रीट लाइंड विद कैफेज, souvenir shops and Tibetan stalls एक यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस देते हैं। मार्केट में सब कुछ मिलता है, फ्रॉम ट्रेडिशनल लद्दाखी हैंडीक्राफ्ट्स, टिबेटन ज्वेलरी, पश्मीना शॉल्स, सोवेनिर्स, ड्राई फ्रूट्स, एनीथिंग यू कैन आस्क फॉर। शॉपिंग के बाद बढ़िया सा लद्दाखी खाना खाया। खाना खा के पेट तो भर गया, लेकिन इस जगह से अभी तक मेरा मन नहीं भरा। लद्दाख में आकर मुझे सुकून मिलता है। यहाँ का कल्चर, ये मोनास्ट्रीज, यहाँ के व्यूज, यहाँ के वार्म लोग, ऑनेस्टली एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वैसे मेरे लिस्ट में और भी पॉइंट्स थे, बट इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टाइम। एक दिन में जितना हो सकता था उतना किया, लेकिन अगर आप और भी कर पाओ तो जरूर करना। हमारे पास तो वक्त की थोड़ी कमी थी, लेकिन अगर आप आओ तो आप अच्छे से टाइम लेकर आना, ले अच्छे से घूमने के लिए। तो इसी के साथ लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ। टेक केयर।